ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলও ভৌগোলিকভাবে বাকি দেশের অনেক কাছে চলে আসবে। পদ্মা সেতুর কখনোই সেই পরিণতি হবে না। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির মোড় ঘোরানো এই পদ্মা সেতু চীনের একটি কোম্পানি তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যাপারে বাংলাদেশ কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। बांग्लादेश के अंदर 25 जून को इफ्तिताह होने जा रहा है पद्मा ब्रिज का, और पद्मा ब्रिज का मुंतजिर है भारत। भारत भी बहुत खुश है कि इस ब्रिज का इफ्तिताह होने जा रहा है। हमने देखा काफ़ी अरसा साजिश करता रहा भारत और भारतीय खुफिया एजेंसी रो, लेकिन जब देखा कि हम बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे तो चले इनकी खुशी में खुश हो जाते हैं और अपने फ़ायदे देखते हैं। अब भारत की हुकूमत ने एक नई उम्मीद लगा ली है बांग्लादेश से, और इस तारीखी ब्रिज के इफ्तिताह के बाद अब नई दिल्ली हुकूमत चाहती है कि बांग्लादेश के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला ये ब्रिज अब बांग्लादेश हमें इजाज़त दे दे कि अपना सामान दूसरी साइड पे पहुंचा सके। कोलकाता को ढाका के साथ जोड़ने वाला ये ब्रिज अब बांग्लादेश का सबसे तारीखी ब्रिज बन चुका है, और भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश इजाजत दे और कोलकाता से सामान हम अपनी दूसरी रियासत तक ले जा सके। इससे काफी टाइम की बचत होगी, और दिल्ली की हुकूमत अब इस ख्वाहिश में है कि इसके इफ्तिताह के बाद अब बांग्लादेश से हम इजाजत मांगेंगे कि हम अपने कंटेनर, अपना सामान रेल के जरिए और गाड़ियों के जरिए अपनी कोलकाता से दूसरी रियासतों में ले जा सके। तो अब भारत भी अपने फायदे देखकर बांग्लादेश से दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, हाथ मिला रहा है, लेकिन जब जरूरत बांग्लादेश को भारत की होती है तो हमेशा भारत आगे दौड़ता हुआ नजर आता है। हमने देखा पिछले दिनों एक वीडियो में कि बांग्लादेश को जरूरत है बिजली की नेपाल से, और भारत इसके ऊपर यह बात कर रहा है कि सबसे पहले हमसे इजाजत मांगोगे, फिर हम इजाजत देंगे, फिर आप ये काम करोगे। लेकिन इस टाइम पे भारत को बांग्लादेश की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी पद्मा ब्रिज के हवाले से। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। আগামী 25 জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমকালীন ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক রচিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে ও চীনের একটি সংস্থার প্রযুক্তিগত সহায়তায় নির্মিত এই সেতুর উদ্বোধনের দিকে প্রতিবেশী ভারতও তাকিয়ে আছে। পদ্মা সেতু নিয়ে ভারতের উৎসাহের প্রধান কারণ, এই সেতু ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে সড়ক বা রেলপথের দূরত্ব অন্তত 3 ঘন্টা কমিয়ে দেবে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যেভাবে একটার পর একটা কানেক্টিভিটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, তাতে ভারতের পণ্য ও যাত্রীবাহী যানও অচিরেই এই সেতু ব্যবহারে অনুমতি পাবে বলে দিল্লি আশা করছে। সেক্ষেত্রে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য যথারীতি বাড়বে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলও ভৌগোলিকভাবে বাকি দেশের অনেক কাছে চলে আসবে। আর পদ্মা সেতু নিয়ে ভারতের যে সামান্য অস্বস্তির উপাদান, তা হল এটি নির্মাণ করেছে চীনের একটি সংস্থা, যে দেশটির সঙ্গে ভারতের ঠান্ডা লড়াই সুবিদিত। ভারতের কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এই সেতু নির্মাণের বরাত পেলে তা দিল্লির জন্য অবশ্যই অনেক গৌরবের বিষয় হতো। তবে এখানেও একটা বড় সান্ত্বনা হলো, চীনা সংস্থা নির্মাণ করলেও বাংলাদেশ এর জন্য কোনো চীনা ঋণ নেয়নি। ফলে ঋণের অর্থ মেটাতে না পেরে হাম্বানটোনা বন্দরকে শ্রীলঙ্কা যেভাবে চীনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে, পদ্মা সেতুর কখনোই সেই পরিণতি হবে না। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির মোড় ঘোরানো এই পদ্মা সেতু চীনের একটি কোম্পানি তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যাপারে বাংলাদেশ কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধানী অবস্থানে চলছে। বস্তুত ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে একটি হাইস্পিড রেল লিঙ্ক স্থাপনের জন্য চীন বারে বারে উৎসাহ দেখালেও বাংলাদেশ কিন্তু সেই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। অর্থনীতি ও কূটনীতির অঙ্গনে চীন ও ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ যেভাবে একটা সফল ভারসাম্য বজায় রেখে চলছে, তাতে দিল্লিও বেশ সন্তুষ্ট। বাংলাদেশ থেকে ভারতে বার্ষিক রফতানির পরিমাণ আগেই $100 কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এখন তা $200 কোটি ছুঁতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু চালু হয়ে গেলে এই অঙ্ক আরও বাড়তে থাকবে, তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। এছাড়া কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে এখন যে মৈত্রী এক্সপ্রেস চলাচল করে, সেটিকেও অচিরেই পদ্মা সেতু দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে ট্রেন জার্নির সময় যেমন অন্তত ঘণ্টা 3 কমবে, দুদেশের যাত্রীদের জন্যই যাত্রা অনেক সহজ হবে।
ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক পর্যটক ও ব্যবসায়ীও এই সেতুর উদ্বোধন আর নতুন ট্রেন রুটের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন। तो जी ये थी वीडियो। अब देखें तो भारत कितनी बड़ी ख्वाहिश लेकर बांग्लादेश के सामने आया है। और जब ये ऐलान हुआ कि चाइना के BRI मंसूबे में पद्मा ब्रिज शामिल नहीं है, तो भारत ने बड़ी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि हमें इजाज़त दी जाए कोलकाता से अपने 7 सिस्टर स्टेट तक रसाई के लिए। इस पुल के ज़रिए भारत के 3 घंटे का टाइम बचत होगी, भारत के 3 घंटे कम होंगे और जल्दी अपना सामान 3 घंटे पहले पहुंचा पाएगा। अब भारत की बड़ी उम्मीदें इस ब्रिज के साथ है। भारत हमेशा कोशिश करता है कि बांग्लादेश के जो भी मंसूबे हों, पहले नंबर पे तो उसके ऊपर तनकीद की जाए ताकि बांग्लादेश उसको कंप्लीट ना कर पाए, और उसके बाद अगर वो नहीं रुकता तो उसके ऊपर भी आप बड़ा एक्शन लें, वहां पे जासूस छोड़ दें, उसकी रैंकिंग करवाएं, उसको डैमेज करने के लिए काम करें। अगर ये भी नहीं होता तो फिर बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाएं और अपने सफर का आगाज करें, अपने फायदे उठाएं और आप साइड भी हो जाएं। हमेशा भारत ने अपने मफादात देखकर बांग्लादेश की मदद की है, और जिस काम में भारत को अपने मफादात नजर नहीं आते, भारत ने कभी भी वो काम नहीं किया और हमेशा बांग्लादेश से कुछ लेता रहा है और कुछ दिया नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो कभी भारत बांग्लादेश को धमकियां लगाता हुआ नजर आता है, कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ नजर आता है, और ये शो करता है कि जिस मामले में भारत को अपने फायदे नजर आते हैं वो बांग्लादेश का दोस्त है, बांग्लादेश का साथी है, बांग्लादेश से मोहब्बत करता है। और जिस मंसूबे में भारत को बांग्लादेश से कोई फायदा नहीं, भारत उसमें पीछे हट जाता है, बांग्लादेश को बुरा भला कहता है, तनकीद करता है, रैंकिंग करता है, जासूस छोड़ता है। तो आप इसका फैसला करें, क्या भारत को इस ब्रिज के इस्तेमाल की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।